good morning. So today we will start the next topic. Yesterday we had done the topic as we have read about Ram Manohar Lohia, and today we shall be studying about Deen Dayal Upadhyay and his theory of internal or integral humanism. So we will do this today. This is the third part. As I told you, there are total 4 parts as according to the new syllabus, which I had already told you. So we had done about Jayaprakash Narayan, and I also told you about Ram Manohar Lohia. So today we shall be taking about Deen Dayal Upadhyay, and then we will see his theory of integral humanism. We will try to understand इस थ्योरी का मीनिंग क्या है. ठीक है, yesterday हमने कौन सी थ्योरी देखी थी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मीनिंग हमने देखा था अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया. टुडे वी विल सी द थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अकॉर्डिंग टू दीन दयाल उपाध्याय. सो लेट्स स्टार्ट दैट. सबसे पहले टू बिगिन विद दिस we'll see what is the date of birth for him. 25th, you can also write 25th September 1916, and death है इनका 11th Feb 1968. So he was born on 25th and his death is on 11th Feb 1968. And he was born in Mathura district of Uttar Pradesh. Ram Manohar Lohia, we have also seen, he was also from Uttar Pradesh, and he is also from Uttar Pradesh, and the district was Mathura. Okay. Indian politician thinkers of right-wing Hindutva ideology exposed by RSS. He was an Indian politician, and he was influenced, or he was a part of RSS. सुना हुआ RSS? राष्ट्रीय सेवा संघ. ठीक है, स्वयं सेवा संघ, एंड लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, बीजेएस, भारतीय जनसंघ. ठीक है, भारतीय जनसंघ क्या आता है? पॉलिटिकल विंग था किसका? आरएसएस. आरएसएस क्या है? आरएसएस ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन. कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? जो हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करता है. इसी के अंदर एक पार्टी बनी हमारी, उसका नाम क्या बता रहे हैं हम? बीजेएस. क्या है? भारतीय जनसंघ. दिस वाज द पॉलिटिकल पार्टी. ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन. इसके बेसिस पे ही एक पार्टी बनी बीजेएस, भारतीय जनसंघ, एंड दिस इज द पेरेंट पार्टी. पेरेंट पार्टी बोलते हैं. इस पेरेंट पार्टी के बेस पे आज हम जो देखते हैं क्या है? बीजेपी. तो बीजेपी हैज कम आउट और इमर्ज फ्रॉम बीजेएस, एंड बीजेएस वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ RSS. तो ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसके बेसिस पे ये पेरेंट पार्टी बनी, एंड फ्रॉम दिस पेरेंट पार्टी देयर इमर्ज बीजेपी. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट नाउ दीन दयाल उपाध्याय, इफ यू टॉक अबाउट पर्सनली अबाउट हिम, ही वाज अ फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन. If you see his lifespan, what all work he has done, what were his contributions? So his contributions were in the field of philosophy, as a philosopher, as a sociologist, economist and politician. Okay, so this is just the general information regarding Deen Dayal Upadhyay. Okay, he was a part of RSS, as I told you. Now integral humanism. What do we understand by integral humanism? By this term, we'll try to understand what do we mean by this term integral humanism. ये इनकी क्या थी? थ्योरी थी. When we talk about this, सारे सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, मैंने बताया था. जयप्रकाश नारायण का सिस्टम अलग था, इनकी आइडियोलॉजीज में थोड़े थोड़े डिफरेंस थे, मॉडिफिकेशंस थे. वैसे राम मनोहर लोहिया का भी सोशलिज्म फॉलो करते थे, बट ही हैड डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड सोशलिज्म. इन द सेम वे दीन दयाल उपाध्याय वाज आल्सो अ सोशलिस्ट पर्सन, पर उनका आइडिया था अबाउट इंटरनल ह्यूमनिज्म. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटरनल ह्यूमनिज्म. Term coined by Deen Dayal Upadhyay. सबसे पहले it can come from one mark who had coined the term internal humanism, or who has given the theory of internal humanism. So you must know them, Deen Dayal Upadhyay. Okay. So indigenous socio-economic model. So under this internal humanism theory, he said that we should have an indigenous socio-economic model. If the word is indigenous, what do we mean by indigenous? Indigenous का meaning self made,
हमें ऐसा इकोनॉमिक सोशल सिस्टम चाहिए हमारी कंट्री में जो क्या हो, सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है, सेल्फ क्रिएटेड जो खुद बना हो, ठीक है। तो सेल्फ क्रिएटेड मींस जो हमको ऐसा एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए हमारी कंट्री में जो हम खुद से बनाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को हम देखिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड प्लान अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिजीनियस पैटर्न, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल मॉडल नॉट बोरोइंग फ्रॉम वेस्ट और ईस्ट। अगर मैं बोलता हूं हमें अपना ही एक इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल बनाना है डेवलपमेंट का, तो एक चीज और हम बोल रहे हैं हमें बोरो नहीं करना है वेस्ट से या ईस्ट से। तो क्लियरली वी आर ट्राइंग टू से हमें किसको फॉलो नहीं करना है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, सोशलिज्म। तो हमें इसे फॉलो नहीं करना है जो यूएस में था और ये कहां था, यूएसएसआर। तो हमें इन दोनों को ही फॉलो नहीं करना है, हमें क्या बनाना है, अपना ही सिस्टम बनाना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस थ्योरी, ठीक है। तो हमें इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सोशियो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ह्यूमन बीइंग शुड बी एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट। इसी थ्योरी के अंदर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड क्या, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कैपिटलिज्म व्हिच वी फॉलोड इन यूएसएसआर। वी डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सोशलिज्म that was followed in USSR, but we have to have our own indigenous theory which should be according to and which should suit the circumstances and situations of Indian society. तो Indian society को जो सूट करे we have to plan such a economic socio economic theory. हमें ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, कुछ नया बनाना है, कुछ new means self create, it will indigenous, something new. Okay. Next thing which is coming up now, एक तो ये इसका पार्ट हो गया, ये समझ आ गया ना, इंडिजीनियस स्टोरी बनानी है हमें अलग, जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म को फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट, तो एट द कोर मान लो दिस इज अ सोसाइटी, ओके हियर एंड दिस इज द डेवलपमेंट और बीच में दे आर सेइंग ये जो पोजीशन है ये किसकी होनी चाहिए, ह्यूमन। फिर इधर से चाहे हम बोले इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इधर मान लो सोशल। We will have social developments, we will have economic developments, we will have political developments, but हमको किसको ध्यान रखना है बीच में, ह्यूमन को। एट द कोर शुड बी ह्यूमन। सबसे पहले हम ह्यूमन को बीच में रखें, फिर उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू थिंक कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक कौन सी पॉलिसीज को अप्लाई करना है, पॉलिटिकल कौन सी अप्लाई करना है, इन द सेम वे सोशल थ्योरीज कौन सी लगानी है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन को सामने रख करके, लाइक वी प्रिपेयर अ सिलेबस फॉर यू, व्हेन वी प्रिपेयर अ सिलेबस फॉर क्लास 12 के स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो फोकस किस पे रहता है हमारा, स्टूडेंट पे, कि इफ देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12 तो ही शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। तो सिलेबस कैसा होना चाहिए हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड। हमें पता होना चाहिए चाइल्ड को क्या पढ़ सकता है, इस एज में वो क्या समझ सकता है। अकॉर्डिंगली योर सिलेबस इज प्लान फॉर इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, दीज आर द वास्ट सब्जेक्ट्स के आप कितना भी पढ़ सकते हो, बट हमें पता है इस चैप्टर में हमें क्लास 12 के स्टूडेंट को कितना बताना है। इफ वी विल स्टार्ट स्टडीिंग अबाउट दीनदयाल उपाध्याय, देयर आर लॉट ऑफ वर्क डन ऑन हिम, रिसर्च वर्क डन ऑन हिम, तो वो सब नहीं पढ़ना है आपको। सो वी आर टीचिंग यू व्हिच इज चाइल्ड सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू क्लास 12 स्टूडेंट। So in the same way, जब हम सोसाइटी में we are talking about economic development, social development, political development, it should be human centered. It's in core में कौन होना चाहिए, human होना चाहिए, okay? It should be at the center. This is the theory according to, कौन बोल रहा है ये बातें, दीनदयाल उपाध्याय, वो बता रहे हैं पॉलिसी। ठीक है, पहले उन्होंने इसका मतलब होता है इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, सेपरेट, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है वेस्टर्न या ईस्टर्न टाइप ऑफ पॉलिसीज पे। वी शुड क्रिएट आवर ओन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम इन इंडिया, और जब वो सिस्टम बनाएंगे तो उसके सेंटर पे, कोर पे हमें किसे रखना है, इंपॉर्टेंस ह्यूमन को देनी है। इतना अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो दिस वी हैव कवर्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। एम क्या है इसके, व्हेन वी टॉक अबाउट
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो थ्योरी दी है इन्होंने, इसके कुछ एम, ये तो मीनिंग बताया हमने, पर इसके कुछ एम तो है कि व्हेन वी फॉलो दिस थ्योरी हमें क्या अचीव होगा। दीज वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जो हमारी सोसाइटी का एक ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ कैसी हो, डिग्निफाइड हो। हम हर एक की डिग्निटी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, किसी को हम सप्रेस ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिफरेंसेस ना हो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर वुमेन मेल के बीच में। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाती थी इसके थ्रू इस टाइप की सोसाइटी हो जहाँ पे हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, हर किसी को इक्वालिटी के साथ देखा जाए, रिस्पेक्ट मिले। तो पहला एम ये था इसका। सेकंड मतलब एक टाइप से देखा जाए इसके थ्रू दे वांटेड अ इक्विटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी, हाँ इक्वालिटी को। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब ये क्या बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय अकॉर्डिंग टू इंटरनल ह्यूमनिज्म, एक तो बता दिया इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए, सबकी डिग्निटी को मेंटेन करना है, प्लस इट सेज दैट देयर शुड बी वी शुड सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब समझ आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव स्टार्टिंग इट फ्रॉम क्लास 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये होता है हमें आज के रिसोर्सेज को अपनी नीड्स के किस तरीके से यूज करना है ताकि हम जो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। वी डोंट हैव टू ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें ताकि इन रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर पाए। ठीक है, तो वी फाइंड सम अल्टरनेटिव। अगर हम अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं लाइक पेट्रोल कम हो रहा है तो वी फाइंड अल्टरनेटिव, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ जाएंगी, तो वो क्या है वी हैव फाउंड द अल्टरनेटिव रिसोर्स ताकि जो नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोल ये फ्यूचर जनरेशन तक आगे चलता रहे। तो इस तरीके से उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर बात की है। थर्ड इज इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी। सबसे बड़ी बात इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मानी जाती है कि इतने डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, so they all are living within the same constitution, same country, so that is why there are so much of conflicts and unrest in our country. But according to him, he said ये जो हमारी डाइवर्सिटी है इसे हमें क्या करना है, प्रमोट करना है और सपोर्ट करना है। ये डाइवर्सिटी ही हमारी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की। सो वी हैव टू प्रमोट एंड सपोर्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी। इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, वी शुड थिंक दैट दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंग we have in our society। तो हमें डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है। तो पॉइंट समझ आ गया, तीन प्रिंसिपल्स थे, सॉरी 3 एम्स। पहला क्या हो गया, डिग्निफाइड लाइफ हो सबकी इक्वालिटी के साथ। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना एंड इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, दीनदयाल ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ नेहरू आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दिस पर्सनैलिटी, दिस पॉलिटिशियन, सोशियोलॉजिस्ट, thinker Deendayal Upadhyay, he was always against the thinking and the economic policies of Jawaharlal Nehru. Why he always thought that Jawaharlal Nehru was always still, he had a tilt, एक टाइप से वो he was influenced by the capitalist system. इंडिया में although we were following the capitalist system, पर इनको लगता था कि जिस तरीके की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक थ्योरीज और पॉलिसीज हमारी सोसाइटी में थी, those all were because of Nehru, और नेहरू का जो इन्फ्लुएंस था किस तरफ था, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से था। और जब किसी सोसाइटी में कैपिटलिस्ट सिस्टम आता है उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और रिच होता जाता है, पुअर और पुअर, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम ज्यादा होता गया। एक रीजन ये दिया है उन्होंने, ठीक है। एंड ही आल्सो सेड डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये जो जितने सोशल इविल्स है ना, ये सब किसी वजह से आते हैं, कैपिटलिस्ट की वजह से, या एक्सट्रीम सोशलिज्म की वजह से भी, या कम्युनलिज्म की वजह से। इसीलिए ही सेड दैट वी शुड हैव अ इंडिजीनियस सोशियो-इकोनॉमिक सिस्टम, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। He said that इंडिजीनियस सोशियो-इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए हमारा डेवलपमेंट का, प्योर कैपिटलिज्म भी नहीं होना चाहिए एंड ऑर्थोडॉक्स स्ट्रिक्टली सोशलिज्म या कम्युनलिज्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से डिस्पैरिटीज आती है, इनइक्वालिटीज आती है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। This led to the disparity and inequality in our society, imbalance leading to rich poor differences ज्यादा होते जाते हैं। So he wanted इसी वजह से he wanted a indigenous socio-economic model for Indian society। इसी वजह से इन्होंने किसको सपोर्ट किया है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। Now moving forward, philosophy of the integral humanism is based on 3 principles। अब जो ये थ्योरी दी है इन्होंने कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये जो थ्योरी है 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स मींस सिद्धांत,
3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट। उन्होंने कहा सबसे पहले हमें सोसाइटी में अपने आप सेल्फिश होकर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमें कैसे देखना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो सके। तभी पहला क्या है, प्राइमेसी ऑफ होल, सबके बारे में सोचना है, नॉट ओनली ऑफ अ पार्ट। पर्टिकुलर एक सोसाइटी में हमारी डाइवर्सिटी है तो एक सोशल ग्रुप को हमें सपोर्ट नहीं करना है, हमें सारे ही सोशल ग्रुप से सपोर्ट करना है। जो बैकवर्ड है, डाउन ट्रोडन है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉवर्टी में है, उसी की वजह से अनइक्वालिटीज है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो हमें सबके साथ आगे बढ़ना है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल इनकी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ये है। दूसरा प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा। सुप्रीमेसी ऑफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसको देनी है, धर्मा मींस द वर्क वी शुड डू एज देयर आर। हर एक इंसान का कुछ पर्टिकुलर काम होता है जो हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें अच्छे से करना चाहिए। इट कैन बी आर मॉरल ड्यूटीज। एज अ ह्यूमन हमें पता होना चाहिए हमारे मॉरल्स क्या है, हमें क्या सिखाया गया है और हमें अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इंटरनल ह्यूमनिज्म, व्हिच इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत, ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब इफ आई टॉक अबाउट यूएस का कैपिटलिस्ट सिस्टम या यूएसएसआर का सोशलिज्म सिस्टम मॉडल, उसमें क्या था, डेवलपमेंट तो हो रहा था, वेल्थ का डेवलपमेंट, माइंड का, बॉडी का, बहुत सारी नीड्स, डिमांड, डिजायर्स फुलफिल हो रही थी इंसान की, बट एक चीज नहीं हो पा रही थी, वो तो क्या था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी, मॉरल्स, इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, मॉरल्स क्या है, हमारे स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो सब मिसिंग था किस मॉडल में, कैपिटलिस्ट में भी और सोशलिज्म में भी। तो इस इंडिजीनियस जो इसके अंदर हमने पढ़ा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर जो इंडिजीनियस हमने मॉडल सोचा बनाने की, उसमें हमने सबसे पहले क्या सोचा, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे कि एक ह्यूमैनिटी क्या चीज है, हमें स्पिरिचुअल लर्निंग हो। ठीक है, इस टाइप से ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। फिर इसमें तीसरा प्रिंसिपल क्या था, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावर, सारी पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए, सोसाइटी में, इक्वालिटी होनी चाहिए। So these three were the main principles of this theory of integral humanism. Principle primacy of whole not part. Second is primacy of dharma, that is moral duties and development. And third is autonomy of society. In notes, this was written. Three principles, those are written. Na? Okay. He was against. So we can say yes, better. First one था primacy, P-R-I-M-A-C-Y, primacy of whole, W-H-O-L-E, whole. कॉमा नॉट पार्ट, मतलब हमें होल सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को नहीं इंपॉर्टेंस देनी है। तो इन सब से वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीनदयाल उपाध्याय वाज अगेंस्ट एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट सिस्टम और अगेंस्ट एक्सट्रीम सोशलिज्म। उनको कैसा सिस्टम चाहिए था, इंडिजीनियस, जो इंडिया की सोसाइटी को देख करके हम इंडिया में खुद अपना एक मॉडल तैयार करें जो किसके ऊपर बेस्ड हो, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हो। ओके, so this we have done. According to him, they only consider the need of the human body. अगर वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है बस वो किस पे ध्यान देता है, हमारे माइंड और बॉडी के डेवलपमेंट पे, और हमारी जो मेटेरियलिस्टिक नीड्स होती है, मेटेरियलिस्टिक नीड्स मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कमाना, पैसा कमाना, ज्यादा कैपिटलिस्ट और सोशल सिस्टम इसी चीज पे फोकस कर रहा है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज एज अ ह्यूमन हमारे अंदर होनी चाहिए, मॉरल्स, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो इन चीजों में मिसिंग है। इसीलिए वो कहाँ हो सकता है, बस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के थ्रू हो सकता है, वो भी जब हम अपना कोई मॉडल क्रिएट करें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हिम। सो उन्होंने हमेशा सोचा था कि जो हमारी सोसाइटी हो हमेशा वो कैसी हो, क्लासलेस हो, क्लास के बीच में इनइक्वालिटीज ना हो, कास्टलेस हो, कोई कास्ट के बीच में, लोगों के बीच में डिफरेंसेस ना हो, और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम हो, ऐसा सोशल सिस्टम हो जहां पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीनदयाल उपाध्याय। सो ज्यादा डिटेल नहीं है, एज आई टोल्ड यू, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा वी हैड टू लर्न। ऑल्सो पहले दो में वी हैड टेकन इन डिटेल। न्यू टॉपिक्स थी हमारी जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, वी हैव कवर्ड दैट। सेकंड वाज राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, yesterday we had covered it, and today we have covered Deen-Dayal Upadhyay and his theory of integral humanism. So this was about him. Fourth additional topic will be democratic upsurge. वो लेंगे हम after your holidays. I think as I have said, from tomorrow you will be having your Diwali holidays for 7 till 17th. On 18th we will start the fourth new topic, and after the fourth topic हम book शुरू करेंगे, chapter जो number 6 है आपका, ठीक है, democratic resurgence, and it is all about the emergency जो impose हुई थी of 1975 की।
Okay, so we'll do that.